Hello students, today I am going to introduce about the name reactions of chapter haloalkanes and haloarenes. Now the first reaction is Sandmeyer reaction. In the Sandmeyer reaction, benzene diazonium salt. How will you prepare? This is prepared from aniline. This is the formula of aniline, benzene having NH2 group. In presence of HNO2, HNO2 plus HCl at 0 to 5 degrees Celsius, then it will convert it into the benzene diazonium salt. Okay, so this is the chloride salt. So here name is benzene diazonium chloride. यहाँ बेंजीन ग्रुप है बेटा. डाई मीन्स टू, एजो मीन्स नाइट्रोजन, and em means positive charge. It means nitrogen having positive charge. Okay, and then Cl negative. Okay, in Sandmeyer reaction, this benzene diazonium chloride is converted into chlorobenzene and bromobenzene. Okay, and cyanobenzene also on treatment with कॉपर क्लोराइड और HCl. इसमें आप CuCl भी यूज़ कर सकते हो, CuCl और HCl. ओके, Cu2Br2 HBr. ठीक है, और थर्ड इसकी जो रिएक्शन हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी CuCN से CuCN और KCN. तो इसकी जो रिएक्शन आएगी उसमें क्या आएगा, साइनाइड आ जाएगा Cn. Okay, this will be formed plus N2. Okay, this is the reaction. तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन. ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज गेटरमैन रिएक्शन. ठीक है, गेटरमैन रिएक्शंस involves the reaction of diazonium salt with copper powder in presence of halogen acid, that is HCl. So this type of reaction is called as Gattermann reaction. In this reaction, benzene diazonium chloride react with copper powder and HCl. It will give the same type of product that as formed in Sandmeyer reaction. First is chlorobenzene, and if we use copper powder and HBr, then it will form the bromobenzene. Okay, the product are same in case of Sandmeyer and Gattermann reaction, but the reagent is different. Okay, now the next type of reaction, that is diazotization reaction. Di means two, azo means nitrogen. टाइजेशन रिएक्शन, तो इसमें हम जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, हाउ विल यू प्रिपेयर, एज आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट दिस कि दिस इज़ द एनालिन. एनालिन में क्या ऐड करोगे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ, टेम्परेचर आप लोगे बेटा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत लो टेम्परेचर लेना होता है यहाँ पे. तो आफ्टर दैट यू this aniline is converted into the benzene diazonium salt. Okay, now the next reaction is Finkelstein reaction, reaction number 4th. This is Finkelstein reaction. In this reaction, chloroalkane and bromoalkane that are converted into iodoalkanes. Okay, iodoalkanes after treating with sodium iodide dissolve in acetone. Okay, so देखो यहाँ पे आपको हैलाइड, एल्काइल हैलाइड है, दिस इज ऑल्सो एल्काइल हैलाइड. तो in this reaction halide ions are exchanged only.
Okay, see this reaction. Here chlorine या bromine is present in presence of NaI. So this chlorine or bromine that is exchanged with iodine. ठीक है, that's why it is Ri. It means this is also alkyl halide, this is also alkyl halide. Okay, ये आ जाएगा. Now the fifth type of reaction, that is Schwarz reaction. In Schwarz reaction, alkyl halide in presence of AgF, it will be converted into Rf plus AgX. This is also a halide exchange reaction. In this reaction we can also use HgF2, Hg2F2, COF2 and SbF3. Okay, means the fluoride salts are used in this reaction, or this type of reactions also involves the halide exchange. Okay, same Rx is converted into Rf. Okay, only method available to prepare the fluoroalkanes from chloro and bromo alkanes. फिंकलस्टीन में क्या बनता है बेटा, आयोडोएल्केन बनता है. स्वार्ट्ज रिएक्शन में ऑलवेज फॉर्म फ्लोरोएल्केन्स. ओके, नाउ द सिक्स्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज वुड्स रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन, जो वुड्स रिएक्शन होती है बेटा, इसमें आप क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड यूज करते हो, दैट इज ऑफ, ठीक है, दिस एल्काइल हैलाइड दैट रिएक्ट विद सोडियम मेटल्स in presence of dry ether and it will form a alkane, and this type of alkane is used for this type of alkane is of higher number. ठीक है, जैसे आपने इथीन लिया, इथेन जब आप इसको 2 टाइम्स करोगे तो ये बनेगा ब्यूटेन टाइप का कंपाउंड. Means this type of reaction is used for the preparation of higher alkanes. Okay, अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हो, ठीक है, तो आपका बनेगा इथेन. तो इवन नंबर में जो है आपके एल्केन्स बनते हैं इसमें, इथेन, ब्यूटेन, ठीक है, इस तरीके से. तो इट मीन्स द वुड्स रिएक्शन, जो वुड्स रिएक्शन होती है वो कैसे काम करती है, जैसे हमारे पास 2 एल्काइल हैलाइड है एंड उनके बीच में आपने सोडियम मेटल को ऐड कर दिया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इट विल फॉर्म अ हायर एल्केन. ओके, हायर एल्केन. वुड्स रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हैविंग even number of carbon atom, but not for the alkanes that is made up of odd number of carbon atom. ओके, सिर्फ इवन के लिए एप्लीकेबल है, odd number of carbon atom के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. ओके, now the next type of reaction, that is electrophilic substitution reaction. In this type of reaction, halogen group is when attached to the benzene ring. जब कोई भी halogen group benzene ring से attach होता है तो it will show a resonance effect. Resonance means plus R effect. It is ortho and para directing group in the electrophilic substitution reaction. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होता है. ठीक है, देखो फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन रिएक्शन. इसमें Cl2 FeCl3 के साथ यूज़ करते हैं. तो हैलोजिनेशन में क्या ऐड होगा, हैलोजन, लेकिन कौन सी पोजीशन पे जाएगा, फर्स्ट इज ऑर्थो, इस क्लोराइड के ऑर्थो में, और इसी क्लोराइड के पैरा पोजीशन पे जाएगा. ओके, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रेशन. In the nitration reaction, the nitrating agent is HNO3 and H2SO4.
ओके, इसमें एक बार ऑर्थो पे चला जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बी ऑफ पैरा पोजिशन। ओके, नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड SO3। तो बेटा इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3H होगा, ठीक है। वन इज एट ऑर्थो पोजिशन एंड अनदर इज एट पैरा पोजिशन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज Friedel-Crafts alkylation. In Friedel-Crafts reaction, the chlorobenzene, जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है, that will be changed into the, देखो इसमें कैसे बनेगा, जैसे ये आपने लिया CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो हम बेटा इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, लेकिन एनहाइड्रस कंडीशन लेनी पड़ती है AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये हमें जो रिएक्शन मिलेगी ये क्या देगी, क्लोरीन तो आपके पास है ही यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, R ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इज एट ऑर्थो एंड सेकंड इज एट पैरा पोजिशन। ओके, तो हम यहाँ एल्काइल ग्रुप यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Friedel-Crafts acylation। सेम इन दिस केस, बट यहाँ पे आपका जो ग्रुप बनेगा एसाइल ग्रुप R≡C। तो ये वाला जो ग्रुप है दैट इज़ असाइल ग्रुप। क्या ग्रुप है, असाइल ग्रुप है। तो इसमें भी सेम वही रिएक्शन होगी। तो हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन होगी उसमें Cl और यहाँ आ जाएगा C≡OR। ओके, दिस इज़ द असाइल ग्रुप। ये एक बार ऑर्थो पे चला जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बी ऑन पैरा पोजिशन। ओके, और जिस एटम से हमारे पास या इस एटम से जहाँ पे हमें लगाया, मान लो सपोज ऑर्थो पे लगाया, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा और आफ्टर दैट क्या ऐड हो जाएगा, COR, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो H यहाँ से निकलेगा और COR यहाँ पे था ही और Cl ये था ही, तो हमारा HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप एज इट इज़ आपका ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ऐड हो जाएगा। ओके, now the next type of reaction, that is Wurtz-Fittig reaction. In this case Wurtz reaction में बेटा आप हम हमेशा यूज़ करते हो एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और फिटिग रिएक्शन जो होती है, सिर्फ फिटिग रिएक्शन, उसमें आप यूज़ करते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, वुड्स प्लस फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो आप वुड्स रिएक्शन के लिए क्या लोगे, CH3Cl एलिफेटिक कंपाउंड्स, और फिटिक के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट इज़ क्लोरोबेंजीन। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर आप ऐड करते हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास जो यहाँ से क्या निकलेगा, 2NaCl, 2NaCl आपका यहाँ से निकल गया और ये जो CH3 बचा है यहाँ पे, ये आपका कहाँ ऐड हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इसको हम बोलेंगे टॉलेन। जब आपका बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगता है CH3, तो उसका नाम हो जाता है टॉलेन। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन। ओके, तो जो एल्काइल हैलाइड होता है, जब इसको सोडियम मेटल के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट विल गिव द बाईफिनाइल और डाईफिनाइल। देखो बेटा, फिटिग रिएक्शन किस लिए यूज़ होती है, इसमें सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स का यूज़ होता है। हम 2 टाइम्स करके लेंगे उसको, ठीक है। जैसे एक सैंडविच का होता है, वैसे ही वुड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शन में होता है। 2 ब्रेड लेते हैं हम, बीच में उसका जो है मटेरियल ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम वही लेंगे, 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे, ठीक है, और बीच में आपने सोडियम मेटल को ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट विल गिव द बाईफिनाइल और डाईफिनाइल। ओके, now how will you convert, how will you differentiate between propane 1-ol and propane 2-ol? देखो बेटा, जो डिस्टेंस
डिस्टिंग्विश वाले जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको आप कोई टेस्ट लगाओगे, ठीक है। भाई एक जो कंपाउंड होता है वो टेस्ट देगा, सेकंड कंपाउंड टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। या एक कंपाउंड का कलर अलग टाइप से आएगा, दूसरे का अलग टाइप से आएगा, तो आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट, ठीक है। इसमें जैसे बेटा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको लिया गया है प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो आपने स्ट्रक्चर लिखा प्रोपेन 1 ऑल, आफ्टर दैट यू विल राइट द प्रोपेन 2 ऑल। अब दोनों के लिए सेम टेस्ट यूज़ करना है। यहाँ पे बेटा टेस्ट लगाया लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ओके। तो लुकास रिएजेंट में क्या आएगा बेटा, जो एल्कोहल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हैलाइड आयंस, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा ठीक है, क्लोरोप्रोपेन। सेकंड भी आप इसी में सेम लोगे, जब आपने इसी में प्रोपेन 2 ऑल में भी लुकास रिएजेंट ऐड किया तो आपका ये आ गया 2 क्लोरोप्रोपेन, ओके। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है जब उसमें लुकास रिएजेंट डालते हैं तो टर्बिडिटी हीट करने के बाद आती है, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी आती है वो आफ्टर 5 मिनट्स अपीयर होती है, ठीक है। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आएगा उसमें, ठीक है। जैसे लाइम वाटर मिल्की होता है वैसे सेम एज इट इज़ इसमें आएगा, ओके। तो यू कैन डिफ्रेंशिएट इजीली बाय द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट। फर्स्ट में प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी ऑन हीटिंग आती है, सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स आएगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज प्रोपेन 2 ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब बेटा देखो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया और दिस वन इज टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के पास 3 एल्काइल ग्रुप है, दैट्स वाई दिस कार्बन इज ऑफ टर्शरी, ओके। इस केस में क्या होगा बेटा, देखो लुकास रिएजेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स आती है, बट इन द केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर, ठीक है। इमीडिएटली उसी जैसे ही आपने उसमें लुकास रिएजेंट ऐड करोगे तभी टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी, ओके। तो यू कैन डिफ्रेंशिएट इजीली द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल by the help of Lucas reagent, okay. Now next is ethene and ethene. How will you differentiate? ethene में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड होता है, और ethene में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कोई टेस्ट लगाओगे, कोई कलर आएगा या फिर वैसे, ठीक है, वो देखना है आपको। अब फर्स्ट लिया बेटा आपने ईथीन, इथीन में Br2CCl4 ऐड किया डार्क की प्रेजेंस में, तो एक Br आपका फर्स्ट कार्बन पे लग जाएगा, दूसरा इस पे लग जाएगा, तो ये कलरलेस आ जाएगा, ओके। लेकिन जब आप इथेन की रिएक्शन इसके साथ करते हो तो बेटा कभी भी इसकी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है, ठीक है। आप अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या ऐड करते हो, Br2 और CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, ठीक है। तो आपका जो है कलरलेस फॉर्म अपीयर होगी, बट एल्केन कभी भी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट द क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोइथेन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, आफ्टर दैट क्लोरोइथेन। अब इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। वन इज़ एरोमेटिक, अनदर इज़ एलिफेटिक, ठीक है। तो बेटा इसमें एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है AgNO3 और HNO3 टेस्ट, ठीक है। AgNO3 का आप टेस्ट लगाते हो तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट भी डालते हो और HNO3 नाइट्रिक एसिड भी डालते हो, तो आपको AgCl के प्रेसिपिटेट मिलेंगे वाइट कलर के, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है दैट इज़ ओनली फॉर एलिफेटिक कंपाउंड्स बट नॉट फॉर एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के केस में नो रिएक्शन, तो आप इस दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये रिएक्शन नहीं देगा बट आपका जो है एलिफेटिक कंपाउंड्स रिएक्शन देगा,
ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, वन इज क्लोरोबेंजीन, सेकेंड इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब क्लोरोबेंजीन के केस में देखो, जब ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है तो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हो कि नो रिएक्शन। जब इसमें आपने AgNO3 का टेस्ट लगाया, इट मीन्स देर इज़ नो रिएक्शन। बट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो ये तो आपका क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, बट दिस इज टाइप ऑफ एल्केन ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इट विल गिव AgNO3 टेस्ट। और AgNO3 टेस्ट में जब बनेगा तो आपका AgCl कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और इसमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन आपने लिया AgNO3 की प्रेजेंस में एंड HNO3 की प्रेजेंस में, नो रिएक्शन। ओके, अब बेंजाइल क्लोराइड बताना है। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन में CH2 ग्रुप लगा देते हो आप, ठीक है। बेंजीन में CH2 ग्रुप लगाओगे तो बेंजाइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, और Cl भी ऐड करना है आपको। तो AgNO3 और HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन बतानी है। अब बेटा ये कंपाउंड सेम है तो ये भी एरोमेटिक, बट यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो CH2 ग्रुप है ये क्या करेगा, मीथेन का काम करेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, फिनाइल ग्रुप इसके साथ जो अटैच है। तो इस वजह से ये एलिफेटिक है, ऊपर वाला CH2Cl एलिफेटिक है, तो ये आपका क्या बनेगा, AgCl कंपाउंड बनाएगा और वाइट पीपीटी देगा। जबकि जो बेंजीन रिंग है ये किसका काम करेगा बेटा, फिनाइल ग्रुप का काम करेगा ये, ठीक है। मेन चेन आपकी कहाँ से बनेगी, CH2 ग्रुप से बनेगी बस। ओके, नेक्स्ट, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट द क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन। देखो बेटा सारा सेम है, इसमें सिर्फ आपको हैलोजन ग्रुप चेंज करना है। फर्स्ट इज क्लोरो, सेकेंड इज ब्रोमो एंड थर्ड इज आयोडो। ओके, सभी में कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं हम, AgNO3 और HNO3 टेस्ट, ठीक है। तो AgNO3 का ही टेस्ट होता है, इसमें हम नाइट्रिक एसिड भी ऐड करते हैं। जब आपने क्लोरोइथेन में ऐड किया तो बेटा इनमें कलर में डिफ्रेंशिएशन आती है, बस टेस्ट सभी का AgNO3 होता है, बट इनके कलर में चेंजिंग आती है। जब क्लोरीन का हम कंपाउंड लेते हैं तो हमारे वाइट कलर के PPT बनते हैं, ठीक है, AgCl के। जब आपने ब्रोमीन ऐड कर दिया बेटा, आफ्टर दैट आपका AgBr बनेगा, दैट इज़ पेल येलो PPT, ठीक है, हल्के से येलो कलर के PPT बनेंगे। और जब आपने आयोडीन को यूज़ किया है AgNO3 के साथ, तो इसमें AgI PPT बनेंगे, दैट इज ऑफ ब्राइट येलो PPT। ओके, so these are the chemical tests to differentiate the different types of compounds. Okay, now the next topic is convergence. कन्वर्जेंस में क्या होता है बेटा, जो प्रिपरेशंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपकी सारी कन्वर्जेंस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। देखो कैसे बनानी है आपको। फर्स्ट इज इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर यू राइट डाउन द इथेनॉल, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूट वन आइन में। तो हमें किस टाइप के रिएजेंट यहाँ यूज़ करने हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो बेटा एल्कोहल है, एल्कोहल को हमें ट्रिप इसमें चेंज करना है और हमारे पास 2 कार्बन एक्स्ट्रा आने चाहिए तभी बनेगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल को किस में चेंज करोगे, एल्काइल हैलाइड में। तो आपने प्रिपरेशन पढ़ी है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, आप कोई भी रिएजेंट ऐड कर सकते हो, PCl5, PCl3, SOCl2, ठीक है। लुकास रिएजेंट भी डाल सकते हो। क्या होता है लुकास रिएजेंट, HCl, कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करते हो, और ZnCl2, ठीक है, ये यूज़ करते हो लुकास रिएजेंट में। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेगा। अब बेटा आपने एल्काइल हैलाइड को बना लिया यहाँ पे, अब आपको यहाँ से यहाँ में चेंज करना है।
तो ऐसा हो जाए कि क्लोरीन निकल जाए और 2 कार्बन आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे NaC ट्रिपल बॉन्ड CH यूज़ करेंगे। यहाँ से NaCl आपका निकल जाएगा और C ट्रिपल बॉन्ड CH आपका रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथेन टू ब्रोमो इथेन। अब इथेन से हमें इथीन बनाना है बेटा, मीन्स सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने प्रिपरेशन पढ़ी है, सबसे पहले आप उसको एल्काइल हैलाइड में चेंज करोगे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में चेंज करने का तरीका क्या है, इसकी प्रिपरेशंस चेक करो आप। जब आप हाइड्रोकार्बन से बनाते हो एल्काइल हैलाइड, तो वहाँ पे आपने यूज़ किया है ब्रोमीन और क्लोरीन। क्या है, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो हमें ब्रोमो चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रोमीन ऐड किया। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये मिला। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड के लिए आपने प्रिपरेशन पढ़ी है, तो अल्कोहलिक KOH डालोगे। अगर अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हो तो बेटा आपको मिलता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर एक्वस KOH यूज़ करते हो तो आपको मिलता है बेटा OH ग्रुप। क्या मिलता है यहाँ से, OH ग्रुप मिलता है। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब यहाँ पे आप अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, KBr यहाँ से निकल जाएगा। ओके, अब क्या करोगे, सेम रिएक्शन डबल बॉन्ड से आप किस में कन्वर्ट करोगे, Br टू CCl4, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड टेस्ट के लिए रिएक्शन करनी है हमें। अनसेचुरेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, Br2 और CCl4। ठीक है, ये क्या करेगा, 2 हैलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन पे अटैच करेगा और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड। आफ्टर दैट अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ब्रोमोइथीन चाहिए, ब्रोमोइथीन। तो ब्रोमोइथीन में क्या होगा बेटा, एक KBr यहाँ से निकलेगा, अल्कोहलिक KOH आप ऐड करोगे, KBr निकल जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, एक H और OH वाटर निकल जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे CH बचा, CH पे क्या आ जाएगा, Br लग जाएगा। कहीं से भी निकाल लो, या इस साइड से या इस साइड से, बिकॉज कार्बन का नंबर दोनों का क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो एक साइड Br अटैच हो जाएगा, दूसरे साइड CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, देखो इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ। जैसे ये है, इसको मैंने, इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे ले लिया H, इसको भी H करके, यहाँ कार्बन है, यहाँ Br से अटैच है ये। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, K पॉजिटिव अटैक करेगा। K पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा, डबल बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो KBr आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, वो किसके पास जाएगा, OH नेगेटिव के पास जाएगा। तो वहाँ पे क्या बना देगा, वाटर। वाटर निकल गया, KBr निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये Br आपके यहाँ था ही, ये एज इट इज़ आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन दैट इज़ प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब प्रोपीन लेना बेटा, प्रोपीन से हमें 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, ये बनाना है। तो आप दोनों अलग अलग तरीके से लिख दो, बीच में गैप छोड़ दो। आफ्टर दैट अब आपको पता होना चाहिए बेटा, जो भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं उनमें या तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें फर्स्ट कार्बन पे ही चेंजिंग करनी है। जब फर्स्ट कार्बन पे चेंजिंग करनी हो तो हम यूज़ करेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ओके, तो आपने HBr ऐड किया यहाँ पे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दिस इज़ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो जब आपने यहाँ पे किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे H इसके पास चला गया, Br इसके पास। कैसे गया बेटा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, negative part goes to the carbon atoms which are attached with double bond. ठीक है, and the carbon atoms having a more number of hydrogen atom. तो हाइड्रोजन देखो किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आपके पास इसमें 2 है, इसमें 1 है,
डबल बॉन्ड होना चाहिए दोनों के बीच में। तो आपके पास मोर फर्स्ट वाले कार्बन पे है, तो Br नेगेटिव पार्ट Br जो है वो यहाँ जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट CH के पास चला जाएगा। अब आपको बनाना है नाइट्रोप्रोपेन, तो जो NO2 ग्रुप है AgNO2 डाल देंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा NO2 फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज टॉलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। टॉलिन का क्या फॉर्मूला है, बेंजीन पे CH3 ग्रुप अटैच करोगे और इससे आपको बेंजाइल एल्कोहल बनानी है। तो दिस इज़ द बेंजाइल ग्रुप, बेंजीन पे CH2 ग्रुप लगा दिया और OH आपका यहाँ लग गया। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे बेटा, Cl2 और HMu की लाइट पास करोगे। ठीक है, पहले आप हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करोगे एल्काइल हैलाइड में, तो आपने ऐड किया CH2Cl आ गया आपका यहाँ पे। फिर अब इससे हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, एक्वस KOH ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक्वस KOH ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। अगर एल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं तो बेटा डबल और ट्रिपल, डबल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं उसे हम। ठीक है, उसमें बीटा एलिमिनेशन होती है, बट यहाँ पे एक्वस KOH हम यूज़ करेंगे तो हमें OH मिलेगा, एल्कोहल मिलेगी। ओके, नाउ द फिफ्थ कन्वर्जन इज प्रोपीन टू प्रोपाइन। अब यहाँ पे आपने प्रोपीन लिया, अब इसको क्या करना है बेटा, प्रोपाइन में चेंज करना है। इट मीन्स डबल से ट्रिपल बॉन्ड में कैसे लेके आए। फर्स्ट आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके पहले सिंगल में एल्काइल हैलाइड का केस बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें Br2 और CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ डार्क आप यूज़ करोगे। आफ्टर दैट ये किस में कन्वर्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के एक ब्रोमीन इस कार्बन के पास, दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के पास। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड में चेंज करना है तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालते हैं, तो NaNO2 डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये जो ब्रोमीन है ये निकल जाएगा और आफ्टर दैट डायरेक्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो दिस इज़ प्रोपाइन। तो डबल से ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए हम ब्रोमीन और CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ डार्क ऐड करेंगे। आफ्टर दैट सोडियम अमाइड। ठीक है, ये ऐड करके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रिपल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू।